See the first question. Raise your hand. Do you have module, beta? Wonderful. Wonderful. Keep your notebook also with you. These questions I have to ask you side by side. Okay, because you know many things. First is, are the following fractions like? Fractions are not written here. See, इसमें diagram बना हुआ है. Yes, row section. Yes, first child. Yeah, are they like? आगे आओ, माइक ऑन करो इसको and tell me. Yes. How they are like? Because all the squares have four parts. Yes, because they have four parts. Can you see? In first we have 1/4. In second we have 2/4. And in third we have 3/4. All have the same denominator. Yes, that's why they are like. Like means उनका denominator same होना चाहिए. Okay? And you know, everybody knows it. कि like and equivalent. If we say कि equivalent have fractions, उनका different meaning होता है. You know it, no? Like is different and equivalent is different. Are these equivalent? Who say yes? Raise your hand. Who say yes? They are equivalent. क्या ये equivalent है? Okay. From sunflower section. Last boy. Yes, आगे आओ जो हाथ खड़ा कर रहे हैं middle row से. Yes. Tell me how they are equivalent. Equivalent कैसे हुए ये तीनों के तीनों? Yes, बोलो, I can hear you. Yes. Yeah. Why they are equal, beta? Denominator is same. Denominator is same. बेटा जब denominator same होता है उनको हम बोलते हैं like. Yes. When denominator are not same, it's called unlike fraction. Okay, sit down. Equivalent क्यों नहीं है? क्योंकि उनका denominator अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ऊपर तो नीचे भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर वो आ जाएगा 2/8. These are equivalent. These are equivalent. जब हम same number मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल सेक्शन बेटा इसको न्यूट्रल आपकी नॉइस आ रही है. Okay. Have you come to know कि these are equivalent जब numerator और denominator से same number को multiply करते हैं whatever answer you get then they are called equivalent. And when their denominators are same then they are called like. You should know the difference between them. This is equivalent and these are like. Okay. Second question is write in fraction form. Question number 2. Fraction form में you have to write. It is written in words. Okay. Daffodil section. First boy. Please आगे आओ. Mic on करो. Yes, very good. आगे आओ. Tell me, write in fraction form. How would you write it? Fraction means number form. You know. What it should be, beta? It should be, beta. 3.7. 3.7. Very good. Very good. One. आंटी बी बताओ बेटा. बी बताओ बेटा. 7.8. Very good. Please remember. Important in this. Sit down. What is important? Important is कि आपका जो denominator वाला number है उसको आप बोल रहे हो 8. This is called 8. Okay, यहाँ पे आप इसको बोल रहे हो 7. Remember it. This is important. आपको पता है कि जो 7th, 8th, 4th, 5th ये सारे नंबर कहाँ आएंगे? डिनोमिनेटर में. और न्यूमिनेटर में क्या आएगा? एक सिंपल नंबर 7, 7, 8, 3, 7, 5, 9. Okay, so how do you focus on that? By its name. जैसा नेम है
वैसी उसकी पोजीशन होएगी. Okay. Third question, represent on the number line. Have you done it in class? How to represent numbers on the number line? Fractions on the number line, have you done? Let us do it now. Third question. First part है आपका 1 4 by 7 और B part है आपका 5 by 9. There are two numbers. इसको केयरफुली करना. जिन जिन को आते हैं जरा हाथ खड़े करो. I want to see number line पे. Good. Okay, good beta. Okay, who don't know, they listen to me carefully. First of all, you have to remember कि ये आपके पास एक proper fraction है and this is improper fraction. Okay, and what is the position of proper fractions? Proper fraction कहाँ पे lie करते हैं number line पे? First, I want you to do B part so that you come to know कि proper fraction कैसे represent करते हैं. Draw a line in your notebook. You know, all proper fractions lie between 0 and 1. Lie between 0 and 1. ये हमने first module में किया था. We discussed that point in that worksheet कि सारे के सारे proper fractions 0 और 1 के बीच में lie करते हैं. So that's why when we draw this line, we start from 0. Right? जिनको आता है they keep doing in their notebook and after doing they can check from the board. जिनको नहीं आता, listen to me very very carefully. We are starting from 0. Now you know denominator is 9. We are making 9 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. They should be equal. एक एक finger के gap पे. Put your finger. एक एक finger के gap पे सारे आपके equivalent marks आएंगे. Okay. And last one जो होगा 9th वाला, that will be 1. 1 को कोई अलग से नहीं बनाना आपने. You are starting from 0, counting 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9th वाला जो last होगा, that will represent 1. Okay, now you're talking about 5 by 9. So this is representing 0 is representing 0 by 9. Now you go ahead, it will be 1 by 9, 2 by 9, 3 by 9, 4 by 9, and this will be 5 by 9. You have reached here. You can mark it as A. A is representing 5 by 9. Okay? Is it clear to everybody? Please remember, आपकी गलती इसमें ना हो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला आपका 0 by 9 रिप्रेजेंट कर रहा है. If you are making 8 parts, it will represent 0 by 8. If you are making 7 parts, it will represent 0 by 7. Okay? और 1 क्या represent करेगा आपका? 9 by 9. आप काउंटिंग करके देख लो इसको. 5 के बाद 6, 7, 8, 9. Last will be 9 by 9. Who have done themselves? Raise your hand. जिन्होंने अपने आप किया है और मेरे से मैच कर रहा है आंसर. Very good, very good. Hands down. और जिनको अभी समझ आ गया है how to do, they also raise their hands now. Who have understood now? Very good. कोई डाउट है किसी को? This is, please remember, सारे के सारे proper fractions they lie between 0 and 1. आप 0 से start करोगे और उसकी marking करोगे. Right? Now this is improper. Mixed fraction है. Mixed fraction का मतलब कि आपके पास ये improper fraction है. Improper fraction क्या है इसका? 7, 7 and 4, 11 by 7. ये represent करना है आपने number line के ऊपर. This is improper fraction. अभी improper fraction जो है आपको यहां पे दिख रहा है कि it is equal to 1 plus 4 by 7. 1 4 by 7 का मतलब क्या है? 1 plus 4 by 7. It means your number, your fraction is lying between 1 and 2. It is starting from 1 because this is 1 plus something. 1 complete plus proper fraction. अगर वो 2 plus something होता तो we should do 2
and 3. 3 plus something है तो 3 and 4. Okay, so it is like that. 1 से आप इसको proper fraction की तरह consider करो. Make 7 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th वाले को आप 2 लिख सकते हो. We are starting from 1 because हमारा था 1 plus something. So it is representing 1 by 7. This is 1 is representing what? 1 क्या represent कर रहा है आपको? This is first part, second part, third, fourth. ठीक है, तो आपका क्या represent करेगा? This one. It will represent 4 by 7. ठीक है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह कंसीडर करो. 1 आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 पार्ट्स है तो 7 by 7 रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटिंग, यू कैन मार्क इट एज बी, इट इज रिप्रेजेंटिंग आपका 11 by 7. I hope it is clear to everybody. Okay, ये improper में आपको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा बेटा. राइट, यू हैव टू राइट इन मिक्स फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. मिक्स के बाद आपको सोचना है कि वो किन दो नंबर्स के बीच में लाइक करता है. इज इट क्लियर? लेट अस डू नेक्स्ट वन, फोर्थ. प्लीज प्रैक्टिस दिस नंबर लाइन वाले क्वेश्चन. प्रैक्टिस करना घर पे. प्रैक्टिस मोर. प्रॉपर के, इम्प्रॉपर के, यू विल कम टू नो कि वो कहाँ पे लाइक करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन. किसको कोई डाउट है यहां तक जितने हमने क्वेश्चंस अभी किए हैं? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, ma'am. Very good. Come to fourth question. Write two fractions that can be reduced to the same lowest term. Lowest term. You understood this word very well. Lowest term या फिर standard form. They have the same meaning. Lowest form, standard form. They have the same meaning. किसी क्वेश्चन में they will ask you standard form. Write in standard form. या write in lowest term. Suppose मेरे पास नंबर है 8 by 16. इसका लोएस्ट टर्म क्या होगा? आप इसको काटते हो ना? एवरीबडी नोज. सेम Yes, टेबल से हम अप एंड डाउन काटेंगे. वी कैन डू 8 to the 16 डायरेक्टली. 8 का टेबल सबको आता है. दिस इज द लोएस्ट टर्म. सबको पता है, ये आपने फिफ्थ में भी किया होगा. लोएस्ट टर्म का मतलब कि इन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर है उसको उसके टेबल से उसको डिवाइड करके आपने उसका फाइनल आंसर फ्रैक्शन में निकाल देना. दिस इज द लोएस्ट टर्म. तो आपको दो फ्रैक्शंस ऐसे ढूंढने हैं जिनका लोएस्ट टर्म सेम हो. सोच के बताओ. थिंक इट. यस, रो सेक्शन. रो सेक्शन. रोल नंबर 5. हु इज रोल नंबर 5? आगे आओ. अपनी नॉलेज से बताओ कि कौन से टू फ्रैक्शंस लिखे हैं जिनका लोएस्ट टर्म सेम आए. कोई भी टू अपने आप बना सकते हैं. वी हैव टू थिंक ऑफ टू फ्रैक्शंस, दिस एंड दिस, जिनका लोएस्ट टर्म सेम आना चाहिए. अगर आप कर रहे हो तो बैठ. हाँ हाँ, बोलो बोलो. वेरी गुड. 9 by 9 by 18. ओके, और दूसरा बताओ बेटा. 8 by 20. बोलो. इट्स ओके. नेक्स्ट. यस, रिपीट बेटा. 7 by 10 by 20. 10 by 10 by 20. ओके, बहुत अच्छा. ये बेटा आपको लिख के देखना पड़ेगा. एक्चुअली दिस यू कांट डू इट ओरली. ओके, सिट डाउन. गुड. You know when we do this,
9 2 ज़ा 18, 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा when you cut zeros, right? So it is 1/2. ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल, वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। वी आर राइटिंग वन मोर एग्जाम्पल, लेट अस राइट डाउन एंड एक और लिख लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आप एग्जाम में कोई भी लिख सकते हो। कोई स्टूडेंट कोई फ्रैक्शन लिखेगा, दूसरा स्टूडेंट कोई और फ्रैक्शन लिखेगा, तो डजेंट मैटर, आपको ये दिख रहा है कि उनका लोएस्ट टर्म सेम आना चाहिए। 10/25 चेक करो इसको, क्या वो सेम आ रही है? चेक करो इनकी लोएस्ट फॉर्म सेम आ रही है। लिख के देखो, वेरी गुड। 4 से काट सकते हो इसको, फिर इसको 2 से काट सकते हो, सिमिलरली हियर इसको 5 से काट सकते हो। दे आर बोथ कमिंग टू 2/5। ठीक है, अपने आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, इसमें आपके आंसर्स आपस में मैच नहीं करेंगे। दो फ्रैक्शंस को कोई और कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, तो डू इन एनी वे आप कोई भी 2 फ्रैक्शंस लिख सकते हो। तो नाउ राइट डाउन बोथ, ताकि आपको पता चले कि कुछ भी लिख सकते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन इज, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इफ दे आर इक्विवेलेंट। आपको चेक करना है कि 3/4 and 6/8 whether they are equivalent or not. Last time you told me कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हो आप। Then yes, 9/4 and 6/8 is equivalent fraction. They are equivalent. Why they are equal? How did you check? Then by cross multiplication. Cross multiplication. Yes, it is told to you. उनको थोड़ा दूर दूर लिखो और उसके बाद क्रॉस करो। This is the simplest method. 3 into 8 and here it is 6 into 4. You know they are equivalent. Both are coming out to be 24. छोटे छोटे ये tables हैं. You can do mentally also. 3 का table, 8 का table, 6 का, 4 का, सबको आता है. This is the easiest method to check whether they are equivalent or not. इसमें कोई mistake के आपके chances नहीं होने चाहिए. Next one. Everybody has noted? These are all subjective questions. You have to perform these calculations in 2 or 3 steps. दो मार्क की क्वेश्चन है ये. Okay, come to question number 5. This is a statement question. You have to read carefully. Rahul takes 11/7 hours to finish his homework, while Naman takes 15/8 hours to finish his homework. 2 persons are there, 2 friends are there. One is finishing in 11/7. You can write down शॉर्ट फॉर्म में राहुल का दिया हुआ है आपको 11/7 एंड नमन का आपको दिया हुआ है फ्रैक्शन, इट इज 5/15/8. 2 fractions are given to you. So, who takes more time and by how much? इसमें आपको 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सल्फा सेक्शन से. रोल नंबर 10. Who is roll number 10? Sulfur section. Yes, better come and tell me what would you do? आंसर तो हम निकालेंगे बाद में, बट टेल मी कि उसमें करना क्या है. Have you understood? Who takes more time? कैसे पता चलेगा वो? Okay. Okay, sit down, beta. Sit down. Roll number 7 from sunflower section. थोड़ा गेस बताओ मेरे को, जस्ट अपनी आइडियाज दो कि हाउ वी शुड सॉल्व इट. ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू आंसर. How will you come to know who took more time? आपको कैसे पता चलेगा कि 11/7 बड़ा है या फिर 15/8 बड़ा है? यही चेक करना है ना आपको.
है ना, यही है ना? Yes, very good. Cross multiplication. Very good. Please sit down. Start doing. Everybody do. We have to see which fraction is more. Which fraction is more? Okay. बेटे जब आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं ना, few children they get confused कि अभी पता नहीं क्या वर्ड. It's a very very simple question. Who took more time? जिसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा. Which fraction is more? Simple question आपको चेक करना है. तो आप क्या कर रहे हो इसमें? फिर से कंपैरिजन कर रहे हो. कंपैरिजन कर रहे हो कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है. सिंपल. Please do it. It is of that kind. अभी अभी जो किया था हमने. Similar question है. वेरी गुड. क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने. व्हाट इज कमिंग ऑन द लेफ्ट साइड? यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? 11 into 8. यहाँ पे आपके पास आ रहा है 15 into 7. This is coming out to be 88. 11 into 15 into 7. 105. So which is more? Who took more time? Naman, you can see this is bigger. इसका मतलब कि 15 by 8 is bigger than 11 by 7. और क्लियरली आपको पता चल रहा है जब आप ऑर्डर में लिखते हो ना, लेफ्ट वाली टर्म लेफ्ट में, राइट वाली टर्म राइट में. ओके, इसी ऑर्डर में जब आप लिखते हो यू कम टू नो कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है. यू कैन राइट हियर नमन टुक मोर टाइम. लिख लो इसको बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. दे आर आस्किंग 2 क्वेश्चंस. उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नमन टुक मोर टाइम. Right? Now we are answering second question. That is how much? कितना ज्यादा टाइम लिया उसने. What would you do now? Total section. Roll number 2. How much more? How will you find? दोनों फ्रैक्शंस को क्या करोगे आपस में? सपोज आपके पास 10 टॉफीज हैं. ठीक है, 10 टॉफीज हैं. तो आपने क्या किया? आपके फ्रेंड के पास मान लो 12 टॉफीज है. ठीक है, तो आप बोलोगे कि मेरे फ्रेंड के पास ज्यादा है. कितनी ज्यादा है? हाउ विल यू फाइंड? क्या करोगे दोनों को? आपके फ्रेंड के पास कितनी ज्यादा है कैसे पता चलेगा आपको? 12 minus 2 10 करके ना, माइनस करके पता चलेगा ना. यस, तो अभी भी इसको भी माइनस करो. ओके, sit down please. Start doing. Subtracted 15 by 8 minus 11 by 7. Please do it now. Subtraction करनी आती है सबको? You know how to take LCM? Very good. इसका LCM लो बेटा. I want to do on the other page 15 by 8 minus 11 by 7. Do it nicely. ये proper question के form में है. Take the LCM first. What will be the LCM of 8 and 7? What will come? LCM निकालना पड़ेगा. यस, बताओ LCM कितना आ रहा है 8 और 7 का? एंड वन थिंग बेटा, प्लीज रिमेम्बर, अब आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाने वाले हो, थोड़े क्विक कैलकुलेशन अंडरस्टैंड करो. यस, रो सेक्शन से व्हाट डू यू वांट टू टेल मी बेटा? हाँ जी बताओ. मैम द आंसर इज 56. 56. इसका मतलब आपने LCM 56 निकाला? यस. आप ऐसे किया या फिर ओरली लिख लिया यहाँ पे 56?
Yes, very good. Okay, sit down. बेटे आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब आपको ये दिखे कि दोनों नंबर इंडिपेंडेंट है, 7 और 8 की टेबल में कुछ भी कॉमन नहीं है, टेबल में नहीं मतलब 7 और 8 नंबर में 7 के फैक्टर्स क्या है, 7 into 1, ठीक है, 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 4, कुछ भी आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो आप इसको 8 7 56 कर दो, डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, 15 into 7 और यहाँ पे क्या आएगा, 11 into 8। एलसीएम लेना आता है सबको, रेज योर हैंड, डू यू नो हाउ टू टेक, ये तो आपने टर्म 1 में ये चैप्टर किया था, वेरी गुड, हैंड्स डाउन, वेरी गुड। अगर ये स्टेप आता है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, व्हेन यू सबट्रैक्टेड you are getting it as 17 by 56. This is your final answer. How much more? When they ask how much more, you found it by subtraction. Okay, let us do next. Question number 7. Write these fractions appropriately as addition or subtraction. फिगर्स आपके सारे ड्रॉ की हुई हैं, पार्ट्स आपके शेडेड किए हुए हैं, तो शेडेड पार्ट्स को आपने देख के बताना है कि कौन से प्लस हो रहे हैं और कौन से माइनस हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट, पेंसिल सेक्शन, बी रेडी, रोल नंबर 5। फिगर मेरे को देख के बताओ, असाइनमेंट साथ लेके आओ अपनी, फिगर को देख के बताओ क्या ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर ऐड हो रहे हैं, शेडेड पार्ट को देख के बताओ। माइक ऑन करो। ए पार्ट, ओके, फर्स्ट का फ्रैक्शन मेरे को बताओ, पूरा जो फर्स्ट हमारे पास सारा का सारा जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या बन रहा है, क्या लग रहा है आपको? 5/5। एक्सीलेंट, 5/5। यस, नेक्स्ट वाले को बताओ। 3/5 minus 3/5 equal to 2/5। वंडरफुल, प्लीज सिट डाउन। इट मीन्स आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमारी सब्ट्रैक्शन हो रही है। क्यों सब्ट्रैक्शन हो रही है? बिकॉज हमारे पास पूरा का पूरा शेडेड पार्ट था पहले से, एंड नाउ द आंसर इज ओनली 2/5। आंसर में आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि सिर्फ 2 पार्ट शेडेड है वहां पे, तो इसका मतलब पूरे में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, साइन विल बी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पार्ट बी पार्ट में इसको थोड़ी सी कलरिंग कर लो बेटा, इसमें 2 सर्कल्स को कलर करो, शेडेड कर लो पेंसिल से, 1 2 3 4 5 6, 2 को कोई 2 को शेड कर लो। आपकी हो सकता है असाइनमेंट में ये ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा पता नहीं चल रहा, ठीक है। 1 2 3, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। फर्स्ट में आपने 2 शेडेड किए हैं, सेकंड में आपने 3 शेड किए हैं, और आंसर में आपके पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6, आंसर में आपके पास है 5 शेडेड, 1 2 3 4 5। इनको शेड कर लो, आप थोड़ा डार्कन कर लो मॉड्यूल में, यू विल कम टू नो ये हमारे कौन कौन से पार्ट शेडेड है। फिर फर्स्ट बॉक्स यू कैन से इट इज 2/6, यहाँ पे कितने शेडेड है 3/6, और यहाँ पे कितने शेडेड है 1 2 3 4 5, 5/6। सबसे ज्यादा शेडेड कहाँ पे है? आंसर में शेडेड है, तो वहीं से आपको पता चल रहा है कि एडिशन का साइन आएगा। कैन यू गेस वेरी वेल? शेडेड पार्ट सबसे ज्यादा हमारा आंसर में है, यहाँ पे 2/6 है, यहाँ पे 3/6 है, वहां पे सबसे ज्यादा 5/6 है, इसका मतलब बीच में कौन सा साइन आएगा? एडिशन का।
Are you guessing it? आपको mentally guess हो रहा है कि हाँ प्लस क्यों लगा रहे हैं और माइनस क्यों लगा रहे हैं? Raise your hand. Have you understood? Very good, very good. आपको shaded part को ध्यान से देखना है कि वो decrease हो रहा है या फिर increase हो रहा है. Increase हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा, decrease हो रहा है तो माइनस का साइन. Okay, C and D part I am giving you for homework. Please do it yourself. C and D part is homework. अब आपको पता चल गया है कि हमने शेडेड पार्ट को कैसे देखना है. ओके. D part. Question number D. Sorry. Question number 8. Question number 8 में shade the parts of figures according to the given fraction. Figures are already given to you. आपके नोटबुक में नहीं ड्रॉ करना है, अपने मॉड्यूल में ही इसको शेड करो. Everybody do it. Okay. Lotus section. Lotus section last girl. Very good. जल्दी से complete करके मेरे पास आओ. Do it and come to me to tell me the answer. बाकी बच्चे अपना कंटिन्यू करो. Very good. Lotus section में middle row से की last girl. Complete करके जल्दी से आओ. आपके पास 1/4 है, B में आपके पास 1/3 है, C में आपके पास है 3/4 एंड D में आपके पास है 4/9. नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. वेरी गुड. कर लिया आपने बेटे? वेरी. आगे आ जाओ जल्दी से. मुझे बता दो कौन सा इसमें कितना कितना शेड होगा. वेरी गुड. टेल मी ए पार्ट में कितना होगा बेटा? ओनली वन पार्ट यू आर शेडिंग. वेरी गुड. सी में वन पार्ट. वेरी गुड. सी में 3 पार्ट. वेरी गुड. एंड फोर्थ में 4 parts are shaded. You can shade any 4 parts of your choice. Very good. Please sit down. Shading अपनी आप करनी है. आपने कोई भी 4 parts कर लो सारे boxes में से. Raise your hand who have done. Very good. This was a simple question. Okay. Let us finish 9 also and 10 also. Question number 9. Find the value of each of the following. This is also an important question. 9 or 1/9 of 270. Today your time is going to up, but I want to finish. Give me 2 minutes more. Okay. So 1/9 of 270. How do you do? Of means आप multiply का sign लगाते हो यहाँ पे. Then you cut it. 9 3 is 27, so it will be 30. तो आपका आंसर आ जाएगा 30. Okay, note it down and B part will be your homework. Same way you have to do that also. Please note it down. A part note down kar lo, B part you can do yourself. Okay. 10th question, fill in the blanks. Question number 10. B part is 1/2 is equal to dash by 16. Very interesting question and important also. What should come in the numerator ताकि ये denominator 16 बन जाए. 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से. इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करो तो it will be 8/16. तो ऊपर ब्लैंक में क्या आएगा? 8. वेरी गुड. इसको कंप्लीट करो. Very good. B part is 3/4 and upper it is numerator it is 21, denominator it is blank. 9. 7 okay. You do it here. 7 and 4 into 7. सेम नंबर से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करोगे.
नीचे आ जाएगा 28. These are all important questions. Please complete 10th also at home. 45. Very good. 45 और डी का आंसर आपके पास है 11/13, तो आपके पास आ जाएगा 143. Please write down the answer so that you can complete at home. चलो ठीक है, बाय बेटा.